Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Ninth class you will start new chapter number 3, periodic table and periodicity of properties. So class, in this chapter you will study about period and group in the periodic table. You will study the periodic law. You will classify the elements into different categories like metals, non-metals, periods and groups, and you study the shape of the periodic table and also the location of groups in the periodic table or families on the periodic table. So let's start. So class, in the previous grades you have learned about the elements and their classification on the basis of metals and non-metals, but in this chapter you will classify the elements in different classification like metals, non-metals and metalloids, and you will also discuss their periodic properties. So, in the year 1800, only 34 elements were known, so their study were relatively easy. By the year 1870, this number increased to almost double, and in the year 1974, this number was 105. Now, at present, 118 elements are known, out of which 92 are naturally occurring on the earth and rest are the artificially prepared. Plus, initially the number of elements was limited, so it was easy for the chemists to study these elements individually. But as time passed, the number of elements increased, so it became difficult for the chemists to study each element individually. So it was felt that elements might be properly arranged so that they could be easily studied. By doing so, one could easily get more information with little effort. So, many chemists of that time, including Lavoisier in 1787, Newlands in 1864, and the others, attempted to classify the elements systematically. So it was a Russian chemist Mendeleev 1869 who made the most successful classification based on the atomic masses of the elements. So क्लास इसमें ये कह रहा है कि शुरू में जो एलिमेंट्स डिस्कवर थे वो बहुत कम थे, ऑलमोस्ट 34। तो ये नंबर बहुत कम है तो इसको स्टडी करना भी बहुत आसान था। तो जो जो टाइम गुजरता गया एलिमेंट्स की तादाद बढ़ती गई, तो साइंटिस्ट जो केमिस्ट थे उस वक्त के, उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि इनको हम अरेंज करें प्रॉपरली, ताकि एक बंदा उसको इजीली स्टडी कर सके विद लिटिल एफर्ट। सो उसके लिए बहुत सी केमिस्ट ने, इंक्लूडिंग लिवाइजर, न्यूलैंड, मेंडेलीव, ठीक है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस दी। तो जिनमें से उस वक्त की मोस्ट सक्सेसफुल जो रही वो मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल रहा। तो चलें, जिन जिन ने इसमें कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में देखते हैं अभी। तो कहते हैं द डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टार्टेड इन 1800. Many scientists in different ages attempted for classifying the elements in different ways. Initially, elements were divided into metals and non-metals. In 1817, J.W. de Bernier, a German chemist, classified chemically similar elements in groups of three on the basis of their atomic masses. These groups are called triads. In triads, the atomic weight of the middle element was the arithmetic mean of the atomic weights of the other two elements. For example, lithium, sodium, potassium. So, atomic mass of lithium and potassium, the arithmetic mean of atomic weight of lithium and potassium is the atomic weight of sodium. तो क्लास इसमें ये कह रहा है कि J.W. दुबर्नियर ने भी, ये भी उन साइंटिस्ट या केमिस्ट में से था जिन्होंने इसको क्लासीफाई करने की कोशिश की। तो इन्होंने एटॉमिक मैसेस की बुनियाद पे तीन ग्रुप ऑफ थ्री या ट्राइड्स की बुनियाद पे इसने एटॉमिक वेट्स को क्लासीफाई की, यानी कि इसने तीन तीन जो एलिमेंट्स थे उनका ग्रुप बनाया और उसमें जो एक्सट्रीम वाले हैं उनका, उनकी एटॉमिक मैसेज के अर्थमेटिक मीन लिया। तो जो आंसर आया वो एटॉमिक वेट था किसका, मिडिल वाले एलिमेंट का। लेकिन क्लास ये वाला जो ये क्लासिफिकेशन है ये भी फेल होगी। उसकी वजह ये कि
उस वक़्त तो एलिमेंट्स कम थे, या ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत कम एलिमेंट्स पे वैलिड आई। जो जो एटॉमिक नंबर बढ़ता, एटॉमिक मैसेज बढ़ते गए, तो ये क्लासिफिकेशन भी फेल हो गई। तो इसके बाद 1864 में मोर एलिमेंट्स हैव बीन डिस्कवर्ड। सो एन इंग्लिश केमिस्ट जे न्यूलैंड classified the elements in order of their increasing atomic masses. He classified the elements into a group of seven and found that every eighth element had the properties similar to the first one of the series. He called these groups as octaves. For example, lithium resembles sodium and fluorine resembles chlorine as shown. अब इस ये क्या कह रहा है कि एक इंग्लिश केमिस्ट जे न्यूलैंड था, उसने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मैसेज, आठ आठ एलिमेंट्स को, यानी कि 7 ग्रुप्स इसने बनाए, और इसने देखा कि जो पहला एलिमेंट है ग्रुप का और जो आठवां है, उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम आ रही हैं। जैसे बेरिलियम है तो इसके बाद जो आठवां बन रहा है वो मैग्नीशियम बन रहा है, ठीक है। बोरान है तो उसके बाद जो आठवां एलिमेंट बन रहा है वो एल्यूमिनियम बन रहा है, तो उसने उसके नीचे रखा उसको, ताकि जैसा कि जो शो कर रहा है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो इन दोनों की सिमिलर है। और इसने इसको ग्रुप ऑफ ऑक्टेव कहा। ऑक्टा भी 8 ही को कहते हैं। But he couldn't be able to classify all the elements in the same manner, so the law of octave also failed. तो ये भी तमाम एलिमेंट्स के लिए वैलिड नहीं था, तो ये भी फेल हो चुका। फिर 1869 में दो केमिस्ट थे, लॉथरमेयर इन जर्मनी एंड दिमित्री मेंडेलीव इन रशिया, एट द एट अबाउट द सेम टाइम इंडिपेंडेंटली developed very similar arrangement of the elements. 1869 में इन दो साइंटिस्ट्स ने या केमिस्ट ने इंडिविजुअली एफर्ट्स की और एक डिफरेंट किस्म का क्लासिफिकेशन हमें पेश किया। दे फाउंड दैट वाइल अरेंजिंग द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैसेज, सर्टन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड एट रेगुलर इंटरवल। इन्होंने देखा कि जब ये एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे एलिमेंट्स को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। जैसे लिथियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी है और सोडियम की है, ये एक जैसे हैं, रेगुलर रेगुलर इंटरवल है, मतलब हर आठवें नंबर पे ये जो है इंक्रीज़ हो रही है, रिपीट हो रही है, तो इसने फिर उसके नीचे रख दिया। तो वैसे ही इन्होंने भी फील किया कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट हो रही हैं। अब लॉथर मेयर है, उसने एटॉमिक वॉल्यूम या डेंसिटीज़ की बुनियाद पे अगेंस्ट देयर एटॉमिक मैसेज उसने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया एंड फाउंड दैट सिमिलर एलिमेंट्स ऑक्युपाइड सिमिलर पोजीशंस इन द ग्राफ. Similarly, Dmitry Mendeleev arranged elements in the form of table. He arranged 65 elements in the period and groups. In this table, he left vacant spaces for the elements of which were not discovered at that time and not to be placed in these vacant spaces. कहते हैं कि मेडलीव ने एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे एलिमेंट्स को पीरियड और ग्रुप्स में क्लासिफाई किया, और जो एलिमेंट्स उस वक़्त ग्रो नहीं थे डिस्कवर्ड, तो उसने उनके लिए जगह छोड़ी जो बाद में उसी जगह पे उस जगह पे वैकेंट स्पेसेस को उन्होंने फिल किया। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल ही प्रिडिक्टेड द प्रॉपर्टीज ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स वेरी एक्यूरेटली दैट वर येट टू बी डिस्कवर्ड। कहते हैं कि जो उस वक्त डिस्कवर्ड नहीं भी हुए थे उनकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज उन्होंने एक्यूरेटली डिस्कवर की, ये प्रिडिक्ट की। Mendeleev classification was based on atomic mass. However, with the discovery of atomic structure, it became clear that elements varied regularly with atomic number, not with atomic mass. It had also become known that properties of the elements depended on the number of arrangement of electrons in each of atoms. तो क्लास एक चीज़ तो आप लोगों ने ऑब्जर्व की होगी कि जो 1800 का पीरियोडिक टेबल था उसने भी एलिमेंट्स को एटॉमिक वेट्स की बुनियाद पे जो है तकसीम किया। उसके बाद जो इंग्लिश केमिस्ट जे न्यूलैंड था उसने भी एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे इसको क्लासीफाई किया। मेंडेलीव ने भी एटॉमिक मैसेज की बुनियाद पे क्लासीफाई किया। तो ये सारे ओल्ड क्लासिफिकेशंस हैं। अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल was put forward by Henry Jain Jeffrey Moseley, an English physicist. This table is based on atomic number. The class key difference between modern and old periodic table is that modern periodic table is based on atomic number while the old one was
based on atomic mass. The modern periodic law states that physical and chemical properties of the elements are the periodic function of their atomic number. तो periodic law जो है वो state करता है कि एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर्स की। एटॉमिक नंबर्स इस वजह से कि ये बेस ही एटॉमिक नंबर पे था। Periodic table is based on periodic table is formed on the basis of this law. In the simplified form, it is divided into 8 vertical columns known as groups or families and 7 horizontal rows known as periods. तो modern periodic table जो है वो 7 पीरियड्स में यानी हॉरिजॉन्टल रोज में और 8 ग्रुप्स में या वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड है। पीरियड क्या होता है? पीरियड है दी हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो पीरियड्स हैं। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 7 यानी कि 7 पीरियड हैं। फ्रॉम द टेबल वी कैन सी दैट all the elements in the same period has the same number of electronic shells। यानी कि आप पीरियड 1 की बात करें तो शेल नंबर भी 1 है। पीरियड दूसरे पीरियड की बात करें तो उसमें 2 शेल्स हैं एलिमेंट के, और जो तीसरा वो है पीरियड है उसमें 3 शेल्स हैं। तो इससे साबित हुआ कि जो पीरियड नंबर है वो वही शो करता है एलिमेंट्स या एटम्स के एटॉमिक शेल्स को। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी पीरियड हैं जो 7 पीरियड्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट पीरियड कंटेन 2 एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड इट इज़ कॉल्ड शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सेकंड एंड थर्ड जो पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स हैं और उनको शॉर्ट पीरियड कहा गया है। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड हैव 18 एलिमेंट्स ईच। इन दीज एलिमेंट्स 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स and the rest of the 10 elements are called transition elements. In fourth period it ranges from scandium to zinc। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो फोर्थ पीरियड में स्कैंडियम से जिंक तक हैं, और फिफ्थ पीरियड में जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो यूट्रियम टू कैडमियम। तो जो सिक्स्थ पीरियड है, सिक्स्थ पीरियड कंटेन 32 एलिमेंट्स विच आर 8 रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स and 14 are known as lanthanide series. Seventh period has also 8 representative elements, 10 transition elements and the rest are called यानी 14 are called, ये जितने भी हैं वो actinide सीरीज में आते हैं। Periodic table is still incomplete and with the discovery of the new elements it will keep on adding these elements over time. The number of valence electrons of the elements in the same period increases gradually by 1 across the period from left to right. This leads to a parallel development of the properties for elements in each period. For example, the metallic properties tend to decrease across each period with the non-metallic properties tend to increase। मतलब कि जो मेटालिक प्रॉपर्टीज़ है, ज़ाहिर है ग्रुप 1 और 2 मेटालिक हैं तो उनकी प्रॉपर्टीज़ लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होंगी, और पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हुए उनकी प्रॉपर्टी डिक्रीज़ होंगी, और राइट साइड में नॉन मेटालिक करेक्टर के ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो उनका नॉन मेटालिक करेक्टर इंक्रीज़ करेगा, ज़ाहिर सी बात है, और मेटालिक करेक्टर डिक्रीज़ करेगा। तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऑल एस एंड टी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स वो होते हैं विच शो वेरिएबल वैलेंसी आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स। lanthanide series are those which come after the lanthanum in sixth period. The lanthanide series contain 14 elements which ranges from cesium to lutetium placed below the periodic table. इसी तरह actinide series are those elements which come after actinium in 7th period. The actinide series contain 14 elements which range from thorium to lawrencium placed separately at the bottom of the periodic table beneath the lanthanide series। तो क्लास ये पढ़ा आप लोगों ने पीरियड्स के बारे में कि कितने पीरियड होते हैं, 7 पीरियड्स हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, उनमें से एलिमेंट्स कितने हैं, और इसी तरह जो ग्रुप हैं वो आप डिस्कस करेंगे कि वर्टिकल कॉलम ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड ग्रुप्स। दे आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 8 और जो नंबर है वो रोमन में होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप नंबर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर टॉप टू बॉटम। तो क्लास ये कह रहा है कि जो ग्रुप नंबर है वो शो करेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, यानी किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वही असल में उसका ग्रुप नंबर होगा। मसलन ग्रुप 1 है तो उसके
जो एटम होंगे, एलिमेंट होंगे, उनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा। ग्रुप 2 है तो आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ग्रुप 3 है तो 3 होंगे, 4 होंगे, 5 और 6, 7 और 8 इसी तरह। ठीक है, तो the periodic table is arranged in such a manner that the elements in the same group have the same number of electrons in the outermost shell of their atomic atom. They have the same number of valence electron. वो आपको भी बात बताई है कि जो भी ग्रुप नंबर है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। मतलब ग्रुप नंबर 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ग्रुप नंबर 8 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 है। तो because the similarity in the number of valence electron, the elements show resemblance in their chemical properties। जाहिर सी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। उसकी वजह यह है कि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक है और वो एटम के लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और उस ग्रुप के सभी एटम्स के लास्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिर सेम होंगी। These elements are very reactive, electropositive and show metallic character. They are also called alkali metals or alkali family। तो ग्रुप 1s ब्लॉक का जो ग्रुप 1a है उसको कहते हैं अल्कली मेटल्स और ग्रुप 2a को कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो नेक्स्ट क्लास ये कहता है कि बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एंड कैल्शियम बिलोंग टू सेकंड ग्रुप। दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कलाइन earth metals। They possess two valence electrons and show similar chemical behavior in the group। They are less electropositive than alkali metals। तो ग्रुप 1 को अल्कली मेटल कहते हैं, ग्रुप 2 को अल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं, ग्रुप 3 है उसको बोरॉन फैमिली भी कहते हैं। एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फैमिली हैव 3 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल। ग्रुप 4 is known as carbon family having a 4 outermost valence electrons in all family members। Then group 5th is called nitrogen family. Group 6th is called oxygen family having 5 and 6 outermost electrons in all the members of the family respectively. The 7th group is called halogens। They have 7 electrons in their valence shell. They require 1 electron to complete their valence shell. They are very electronegative and they show non-metallic character। The 8th group is called noble gases or noble family or noble metals। They have 2 or 8 electrons in their valence shell। They possess a chemical inertness। They show chemical inertness in their character due to the completion of their valence shell। उसकी वजह यह है कि वैलेंस शेल जो हैं वो डिपेंड क्या करते हैं कि अगर वैलेंस शेल कंप्लीट है तो वो मेटल इनर्ट, वो एलिमेंट इनर्ट है। केमिकल रिएक्शन होता ही तब है जब उसको इलेक्ट्रॉन्स चाहिए हों। ठीक है, तो नोबल मेटल्स तो होंगे ही, वैलेंस इलेक्ट्रॉन उनका फिल होगा वैलेंस शेल, तो उस वजह से वो केमिकली इनर्ट होंगे। नेक्स्ट कहता है बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सब शेल्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट्स as in these elements the s subshell are in the process of completion। यानी कि ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 और 2 है वो उसको एस ब्लॉक कहते हैं क्योंकि उसकी वजह ये कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखें तो उसका आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो है या आखिरी इलेक्ट्रॉन वो एस सब शेल में आता है। इसी तरह पी ब्लॉक वो हैं जिनका प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन में पी ब्लॉक आता है। डी वाले वो हैं जो जिनमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में आता है। तो नेक्स्ट कहता है कि ग्रुप 3 टू ग्रुप 8 एलिमेंट्स आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी जो बताया आपको एज इन दीज एलिमेंट्स द पी सब शेल इज इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन। ऑल द एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर called representative elements। Transition elements are called D block elements while the lanthanide and actinide series elements are called F block elements। अब एक जनरल स्केच है पीरियोडिक टेबल का, तो उससे पहले आपके पास एग्जांपल है 3.1। तो ये आप लोगों ने क्या करना है, यूज़ द पीरियोडिक टेबल टू आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। द फिफ्थ एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़। अब आपने देखना है कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में फिफ्थ एलिमेंट कौन सा है, तो वो अपने इसका नाम लिखना है, बल्कि ये सोल्यूशन है मैंगनीज़ है वो। ठीक है, नेक्स्ट है द एलिमेंट ऑफ द फोर्थ पीरियड दैट इज़ आल्सो इन ग्रुप फिफ्थ बी। ग्रुप 5b में जो फोर्थ पीरियड में एलिमेंट है उसका नाम लिखेंगे तो वो क्या है, वी यानी वेनेडियम। तो लास्ट लेंथेनाइड का जो एलिमेंट है वो क्या है, ल्यूटीशियम। तो ये सारे का जो है आपने क्लास प्रैक्टिस भी इनकी करनी है। नेक्स्ट है टेस्ट योरसेल्फ। तो इसमें टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट पोटाशियम बिलोंग। पोटाशियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये आपने पीरियोडिक टेबल खोलना है और उसमें देखना है कि पोटाशियम कहाँ पे है और कौन से ग्रुप में है, तो उसका ग्रुप नंबर आपने लिखना है। टू विच पीरियड डज द एलिमेंट आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो किस पीरियड से बिलोंग करता है वो आपने लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है टू विच ग्रुप डज द एलिमेंट
टाइटेनियम बिलोंग, तो टाइटेनियम किस ग्रुप से बिलोंग करता है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर मेटल्स और नॉन मेटल्स, कहता है कि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं सीजियम, बोरान, सिलीनियम, फास्फोरस, एस्टेटिन और ऑस्मियम, ये मेटल्स हैं या नॉन मेटल्स हैं। तो ये आपने लिखने हैं। हाउ मेनी शेल्स एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स द एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम विल हैव, तो कैल्शियम जो है वो एलिमेंट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और शेल कितने हैं। तो आपको मैंने बताया था कि जो ग्रुप नंबर 1 है वो उसका मतलब है कि उसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसी तरह जो पीरियड है वो शो करता है नंबर ऑफ शेल्स को। तो ये आपने देखना है कि एलिमेंट कैल्शियम के कितने शेल्स हैं और कितने उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ज़ाहिर सी बात है जितना नंबर, अगर पीरियड नंबर 1 है उसका या 2 है तो उसका शेल्स भी इसी तरह 1 या 2 होंगी, वो आपने खुद से लिखने हैं, खुद देख के। अब एलिमेंट एक्स इज़ लोकेटेड ऑन द इन द पीरियड 3 ग्रुप नंबर 2 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, डिड्यूस इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है कि एक एलिमेंट है जो पीरियड नंबर 3 में है और ग्रुप नंबर 2 में है, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों ने लिखनी है ए बी सी या डी में से। तो क्लास आज आप लोगों ने इसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में, फिर उसके बाद पीरियड ग्रुप पढ़े, उसके बाद क्लासिफिकेशन बल्कि पढ़ी है इससे पहले, ठीक है। फिर आपने पीरियड्स देखें क्या होते हैं, कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्रुप देखे आप लोगों ने, और उसके बाद आप लोगों ने इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे 3.1 है। इसी तरह 3.1 के बाद ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम है 3.2, आइडेंटिफाई द सेकंड नोबल गैस। तो ये भी आप लोगों की प्रैक्टिस है, यानी कि होमवर्क है, और टेस्ट योरसेल्फ भी आप लोगों ने होमवर्क करके लाना है। क्लास इस लेक्चर में इतना ही। तो आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा, अगर नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।